Good morning, everyone. This is your physics class. In previous class, we have studied about theory of interference fringes, and we have seen the expressions for position of maxima and minima, from which we have derived the thickness of fringe, or we can say fringe width. After that, we have seen where the fringe will be at maxima, where this will be at minima. So this was about the interference pattern. So for producing continuous, or you can say sustained interference, there are some basic conditions to be followed. So इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है. बिना उसके इंटरफेरेंस पैटर्न बना नहीं रह सकता, या तो फिर वो ब्लर होगा, या तो प्रॉपर ब्राइट और डार्क के बीच में कंट्रास्ट नहीं रहेगा, या फिर कलर पैटर्न कलरफुल पैटर्न बनने लगेगा डिस्टिंक्ट पैटर्न के अलावा. ठीक है, इस तरह के कुछ कमियां हैं अलग अलग कंडीशंस को फॉलो ना करने के कारण. ठीक है, so today we are going to study conditions for sustained interference. Then we will study about the intensity distribution curve. Then we will come to conservation of energy in this interference pattern, whether this is followed or not. Then we will study the comparison of intensities at maxima and minima. So firstly, starting conditions for sustained interference. ठीक है, so what is the sustained interference? This we need to understand first. So see, what is the sustained interference or the permanent interference pattern? The interference pattern in which the positions of maxima and minima of intensity on the observation screen do not change with time. The positions of maxima, try to understand what is not changing, the positions, is called sustained interference or permanent interference pattern. So what are the conditions needed to obtaining this particular condition? Firstly, we will see it one by one. There are about 6 to 8 steps or conditions. First one is, see, I am explaining you it one by one, and I will not write all the content. This will be provided to you in the PDF format. So firstly, the two sources, because we have used two sources now, so the two sources should continuously emit wave of same frequency or same wavelength. ये तो हमारी condition ही थी ना. तो two sources should continuously emit wave of same frequency. Two sources, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल एक्सप्लेनेशन के लिए, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी सो वेवलेंथ विल ऑल्सो भी सेम. यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी में इतना ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेनली तो फ्रीक्वेंसी पे ही ध्यान देना होता है. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट. कोहेरेंट हमने पीछे पढ़ा ना, जिनमें जो दो वेव्स हैं उनके बीच फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट और जीरो. ऑल राइट, सो द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, दैट इज दे मस्ट वाइब्रेट आइदर इन फेज और विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम. या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या कांस्टेंट हो. सो टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. कोहेरेंट तो एक बेसिक नीड ही है इंटरफेरेंस के लिए. थर्ड वन, फॉर अ बेटर कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा. देखो मैक्सिमा और मिनिमा को के बीच में कंट्रास्ट कैसा होना चाहिए आइडियली. मिनिमा एकदम ज़ीरो होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे डार्क लाइन दिखे, लाइट दिखे ही ना, और मैक्सिमा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए. सो फॉर अ बेटर कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी, the amplitude of interfering waves should be equal. For better contrast, किस चीज़ का कंट्रास्ट? बिटवीन इंटेंसिटी
ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मिनिमा क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड्स जो A1 A2 हम एम्पलीट्यूड लेते हैं ना, मान लीजिए y1 एक वेव है, y1 इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो A1 एंड A2 मस्ट बी इक्वल। कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हमें बहुत अच्छा पैटर्न चाहिए तो A1 और A2 को या इक्वल हो या तो इक्विवेलेंट भी चलेगा। A1 एम्पलीट्यूड्स ऑफ interfering waves should be equal, है ना। अब इसके बाद फोर्थ वन, ये क्यों होगा अभी हम दिखाएंगे आपको, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। इसको अभी हम आगे जब मैक्सिमम और मिनिमा की इंटेंसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, द टू सोर्सेज शुड बी नैरो। नैरो मतलब ये मैंने पहले ही बताया था, S1 और S2 जो स्लिट्स होती हैं वो बहुत बहुत पतली होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या प्रॉब्लम आएगी, इंटरफेरेंस विल अकर बिटवीन वेव्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सोर्स एंड कंट्रास्ट विल बी पुअर, ठीक है। सो वी कैन से सोर्सेज शुड बी नैरो, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। सोर्सेस शुड बी नैरो, ये तब हम पढ़ेंगे कि समस्या कहाँ आएगी, जब हम थिक फिल्म्स में अलग अलग लेयर्स से इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। तो ये स्लिट, ये दो स्लिट है। अब अगर मान लीजिए चौड़ा रहा होता, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के बीच का पैटर्न आया, तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक है दोनों सोर्सेस के थिकनेस। अब यहाँ क्या हो जाता है कि ये यहाँ से लाइट रे है और ये यहाँ वाली लाइट, यहाँ से भी एक सोर्स से लाइट रे निकल रही है, यहाँ से भी ये वाला, यानी इनके आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाते तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, इंटरफेरेंस प्रॉपर नहीं होता, इसलिए सोर्सेज शुड बी नैरो, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ वन, the interfering waves must travel nearly along the same direction of wave। अगेन अगर सेम डायरेक्शन नहीं होगी तो इंटरफेरेंस प्रॉपर नहीं होगा और तो मैक्सिमम और मिनिमा का कंट्रास्ट अच्छा नहीं होगा। सेम डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, सिक्स क्या होना चाहिए, द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्सेस कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि वेवलेंथ उसकी यूनिक होनी चाहिए, वरना दिक्कत क्या आएगी, अलग अलग कलर की वेवलेंथ हो जाएगी और अलग अलग कलर की वेव्स ओवरलैप करेंगी तो इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा, एक अलग अलग तरह की फ्रिंजेस फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अलग अलग कलर्स की फ्रिंजेस फॉर्म हो जाएंगी, जो प्रॉपर पैटर्न आना चाहिए था ब्राइट डार्क का वो नहीं आएगा, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब उसका कलर एक होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ यूनिक होनी चाहिए। जैसे 5601 एंगस्ट्रॉम है तो 5601 ही रहे, 5602 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब एक ही वेव से, एक ही सोर्स से दो अलग अलग साथ में वेव्स नहीं निकल रही। सिमिलरली सेवेंथ वन, द इंटरफेरेंस वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन आपने पढ़ा नहीं है तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि अभी के लिए सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। क्योंकि आपने EM वेव्स पढ़ा है तो मैं एक आसान भाषा में समझा दूं कि जैसे वेव्स थी EM वेव्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट करते थे। तो अगर हम केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर को यूज़ करें, जैसा कि मैंने बीच में कभी पढ़ाते हुए बताया था कि ऑप्टिकल फिनोमेना केवल किसके थ्रू मतलब कंट्रोल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो वाइब्रेट करता है वो x दिशा में है, y दिशा में है कि z दिशा में है कि उसके कॉम्बिनेशन की किसी और डायरेक्शन में है, xz प्लेन में है, yz प्लेन में, इस तरह से अलग अलग जो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये दोनों वेव्स के लिए सेम होना चाहिए, तो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए,
ठीक है, बाकी जब हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा, पूरा तो कभी नहीं आता। एर्थ टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस शुड बी स्मॉल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी लार्ज। आपने ये पढ़ा था ना, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, है ना फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ चौड़ी भी रहे और उसकी इंटेंसिटी भी प्रॉपर कंट्रास्ट की रहे, तो इसके लिए स्मॉल डी यानी फ्रिंज जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस यानी सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, और कैपिटल डी द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स शुड बी लार्ज, है ना, तब बीटा ज़्यादा होगा। और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते वरना इंटरफेरेंस प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। तो इनके बीच में प्रॉपर वैल्यू चूज़ करनी पड़ती है जिसपे सबसे अच्छा पैटर्न बने। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। नाउ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो व्हाट इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, कर्व को, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। Alright, so see, as we have seen I max, I क्या होता है, I इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने देखा था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और जब मैंने यहाँ कहा था कि मैक्सिमा कब होगा तो कॉस की जगह क्या यूज़ किया हुआ था, मैक्सिमा प्लस 1 कॉस फाई, है ना, ये था ना, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और रूट के बाहर cos फाई। मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा cos फाई शुड बी प्लस 1, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर लिखा था मैंने, ये लिखा था ना। तो यहाँ पे अब आप देखिए, इफ यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इंटेंसिटी रूट इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये इंटेंसिटी इक्वल्स टू के एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे कैपिटल ए यूज़ करना है, तो किसी भी समय में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। देन वी कैन राइट, जैसा कि हमने पीछे यूज़ किया वीडियो में, इसके लिए क्या लिखेंगे, के A1 प्लस के A2 और इसका स्क्वायर, यही होगा, नहीं रूट के तो उसके साथ है ना, तो बाहर लेंगे तो ये आएगा के A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। नाउ सपोज मैंने क्या कहा था, सस्टेन इंटरफेरेंस कंडीशन में A1 इज इक्वल्स टू A2, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए एम्पलीट्यूड्स, जिससे कि कंट्रास्ट सबसे अच्छा है। देन वी कैन राइट I is equals to K A plus A whole square for maxima, प्लस है ना बीच में, सो इट शुड बी 4KA square। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, एम्पलीट्यूड K is a constant of proportionality between the intensity and the amplitude relation, so it is a constant। then we can say the maximum, ये तो max है ना, I max, सॉरी मुझे ऐसे लिखना चाहिए I max, ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है, I max है ये, ठीक है। तो I max कितना आया, 4KA स्क्वायर विच इज़ अ कांस्टेंट। सिमिलरली मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम I मिनिमम क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता था ना, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। देन वी कैन से के वही सेम चीज़, सपोज हमने कर लिया कि एम्पलीट्यूड सेम है तो A माइनस A होल स्क्वायर, देन इट इज इक्वल्स टू 0। यानी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए आइडियल कंडीशंस पे, जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का ऑलमोस्ट इक्वल हो, इट शुड बी 0। इट मीन्स देयर इज कंप्लीट डार्कनेस, ऑलराइट। सो ऑल डार्क फ्रिंजेस, सो डार्क फ्रिंजेस will be perfectly dark, है ना। नाउ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब इसी चीज़ को हम कर्व पे प्लॉट करेंगे।
तो कर्व पे प्लॉट करने पे देखिए, कर्व पे प्लॉट करने को देखिए, दिस इज द इंटेंसिटी एंड दिस इज द पोजीशंस। इन पोजीशंस को मैं यहाँ पे अलग अलग, ये जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो पाथ डिफरेंस है उसके फॉर्म में यहाँ लिखने जा रहे हैं, एक्स के फॉर्म में, सॉरी एक्स के फॉर्म में, जो हम लोगों ने एक्स पढ़ा था ना, पोजीशन एक्स हमने अभी पीछे निकाला था पिछले वीडियो में, उसके फॉर्म में। ये इसको आप ऐसे समझिएगा कि उधर स्क्रीन है, इधर की ओर लाइट पड़ रही है, तो ये सेंटर है, सेंटर से ऊपर वाला, सेंटर से नीचे वाला, जैसे मैं हमेशा बनाता था जब इंटेंसिटी वाला ये यंग्स एक्सपेरिमेंट जब बनाता था। सो इट इज़ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हियर इट इज़ इंटेंसिटी, हियर इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, है ना, ये एक्स से रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए ये तो दोनों तरफ होगा ना, सेंटर से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी, या अगल या बगल, मतलब जैसा हमने वो जो कर्व बनाया था पिछला वाला, जब अभी तक हम यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे। देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, 4ka²। तो हमने एक लाइन बनाई जो 4ka² के बराबर है। हाउ मच इट इज़? इट इज़ 4ka², 4ka²। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बताता है। आपको पता है सेंट्रल पे हमेशा मैक्सिमा होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद ये साइनोसॉइडली डिक्रीज करती है इंटेंसिटी, क्योंकि आप देख रहे हैं, सॉरी साइनोसॉइडली नहीं, ये यहाँ पे देखिए जो कोसाइन है वो दिखाना जरूरी है ना, तब आप कह सकते हैं। ये देखिए कॉस फाई ना, अब हम कह सकते हैं कि ये साइनोसॉइडली डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट डार्क मिनिमा होगा, यानी फर्स्ट मिनिमा, वो पिछले जहाँ कंडीशन हमने मिनिमा और मैक्सिमम की पढ़ाई थी, वहाँ आप देखिएगा एक आ रहा था d λ/2d पे, फिर मिनिमा आता है 3d λ/2d, अगेन इट कम्स एट 5d λ/2d। ये मिनिमा कंडीशंस हैं जो हम पीछे से देख सकते हैं, यानी इंटेंसिटी मिनिमम जब होती। सिमिलरली हियर ऑल्सो इट इज एट, ये सेम चीज़ ही तो इधर भी होगा, -3d λ/2d। ये पोजीशंस है, माइनस मतलब दूसरे तरफ, ठीक है ना, ये माइनस में इंटेंसिटी नहीं है, डिस्टेंस है। और सिमिलरली हियर इट कैन बी -5d λ/2d एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हियर टू हियर इट इज डिक्रीजिंग साइनोसॉइडली। यहाँ मिनिमम हो गया, अब यहाँ से मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ मिनिमम होगा, यानी यहाँ मिनिमम, अब ये बीच में क्या है, ये मैक्सिमा होगा। जब आप पिछले वीडियो में नोटिस करेंगे, these are the conditions of minimum intensity, it is d λ/2d माइनस में। सिमिलरली हियर ऑल्सो, थोड़ा कर्व प्रॉपर नहीं है, बट यू कैन एनालाइज कि ये वही है ना। मैक्सिमम कितना जा सकता है किसी भी पोजीशन पे, 4ka², तो इसलिए मैक्सिमम कितना जा रहा है, 4ka²। कर सकते हैं ना ये। सो दिस इज द कंडीशन, और यू कैन से द कर्व फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा आप लोग पेंसिल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। मैक्सिमा इज एट 4ka², मैक्सिमा वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज 4ka², और मैक्सिमा कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। फिर ये पोजीशन जो है d λ/2d और 3d λ/2d के बीच में होगा। सिमिलरली ये पोजीशंस मतलब मैक्सिमा की हैं, और ये जो पोजीशंस हैं ये मिनिमा की। आप पीछे वाले वीडियो से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मैंने निकाली थी, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑलराइट, सो वी कैन से ऑन प्लॉटिंग द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अगेंस्ट एक्स फ्रॉम O, we get a curve like this. The intensity is maximum at the central point, then it becomes 0 and maximum alternately on either side of O, depending on x is odd multiple of this, ये odd multiple है, या तो ये क्या है, ये d λ/2d है, तो ये d λ/ केवल d होगा। सिमिलरली ये वाला भी क्या होगा, d λ/d होगा। तो ये आप समझ रहे हैं। नाउ दिस वी कैन से इट इज फर्स्ट ब्राइट, ये वाला कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट ब्राइट। ये क्या है, फर्स्ट
ब्राइट, तो आप इसको कह सकते हैं ना इट इज सेकेंड ब्राइट. दिस इज फर्स्ट ब्राइट इन अदर साइड, फर्स्ट ब्राइट. ठीक है. इट इज फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क पहले मिल गया. सेंट्रल वाले को फर्स्ट ब्राइट नहीं कहते हैं. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. दिस इज फर्स्ट ब्राइट, तो सेंट्रल और फर्स्ट के बीच में क्या आया? फर्स्ट डार्क. सिमिलरली फर्स्ट ब्राइट एंड सेकंड ब्राइट के बीच में क्या आया? सेकंड डार्क. सो यू कैन क्लियरली सी इट. सो यू कैन ऑलवेज से दैट ब्राइट इज एक्चुअली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी लैम्डा बाई डी. ये हमने पीछे भी तो पढ़ा. एंड डार्क इज एक्चुअली द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना. या तो कह सकते हैं हाफ मल्टीपल, ये जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ डी लैम्डा बाई डी, ये कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्या. अब आप जरा सोचिए कि जिस टाइम में ये फिनोमेना हो रहा है, क्या उस टाइम में आपकी जो एनर्जी है इज इट कंजर्व्ड और नॉट. यानी इंटरफेरेंस जब फॉलो हो रहा है देन एनर्जी इज कंजर्व्ड और नॉट. सो लेट्स सी, हमको दिखाना क्या है. इंटरफेरेंस फिनोमेना में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है. सो हियर इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न. See, in an interference pattern, the intensity at the points of maxima and minima are I max. मैं दोनों चीज़ लिख रहा हूँ. I max is proportional to A1 plus A2. मान लीजिए अगर उनके एम्पलीट्यूड्स A1 A2 हैं, A नहीं है मतलब बराबर नहीं है. ये हो सकता है ना, प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, जो कंबाइंड वो वेव बनी. एंड I min is equals to proportional to A1 minus A2 होल स्क्वायर. ऑलराइट, हेंस वी कैन, देखिए आई मैक्स यानी मैक्सिमम वाली जो स्ट्रिप बनी है, मैक्सिमा जो बना है उसके स्ट्रिप में कितनी इंटेंसिटी है, और मिनिमा उसी टाइम में जो स्ट्रिप बनी है उसमें कितनी इंटेंसिटी है, इसका एवरेज निकाल लें. ठीक है. सो आई ए वी, आई एवरेज, इट इज प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से दैट द एवरेज ऑफ दिस टू विल बी A1 प्लस A2 होल स्क्वायर प्लस A1 minus A2 whole square divided by 2. or we can say IAV is actually equals to proportional to, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यानी 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर. और वो जो माइनस वाला टर्म है वो मतलब अदर टर्म 2A1 A2 और माइनस 2A1 A2 कैंसिल आउट. सो इट इज A1 स्क्वायर और नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल आउट, देन इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. दिस इज द amplitude for the resultant. If there is no interference between the light waves from the two sources, then intensity at every point would be same, that is this much. अगर इंटरफेरेंस ना हो रहा होता, आपने क्या पाया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न में एक टर्म और जुड़ा हुआ था. एक तो देखिए मैं साइड में बना भी दे रहा हूँ, याद दिला दूँ आपको, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, यही तो था. यहाँ पे ये क्या था, k A1 स्क्वायर ये वाले के लिए प्लस ये k A2 स्क्वायर प्लस ये टर्म एक तो जिसको मैंने क्या कहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न. देखिए ये k A1 स्क्वायर k A2 स्क्वायर, अगर मैं ये इसकी बात करूँ तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊँ तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. I इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से कह सकते हैं ना, बट हियर वन एडिशनल टर्म इज ऑल्सो देयर, इट इज़ द इंटरफेरेंस पैटर्न. यानी अगर इंटरफेरेंस ना हो रहा होता तो जो इंटेंसिटी होती वो इतनी होती, है ना, यही होती, विच इज सेम एज आई एवरेज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस. वॉट एवर एनर्जी डिसअपियर्स फ्रॉम अ डार्क फ्रिंज एंड इक्वल एनर्जी अपीयर्स इन अ ब्राइट फ्रिंज. मतलब अगर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं तब आई मैक्स अपने आप में इंडिविजुअली अगर सोचिए और आई मिन सोचिए तो दोनों की वैल्यू का एवरेज ही तो यही है. इसका मतलब जब इंटरफेरेंस हो जाता है, अभी तो दोनों में बराबर बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटरफेरेंस फेनोमेना में
मैक्सिमा और मिनिमा में अलग अलग इंटेंसिटीज़ जो होती हैं वो तो इंडिविजुअली K1² प्लस K2² है ना, इसके प्रोपोर्शनल है। तो एवरेज अगर इनका निकालें, मतलब इंटरफेरेंस नहीं, ये एवरेज है, एवरेज जब निकालें तो वही एनर्जी आती है जो तब आ रही होती है अगर इसका इंटरफेरेंस ना हुआ होता। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी अभी भी उतनी ही है जो इंडिविजुअल के एवरेज के बराबर होती अगर इंटरफेरेंस ना हुआ होता। अगर इंटरफेरेंस हो गया है तो वो जो स्ट्रिप हैं उसमें मैंने आपसे बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। तो होता क्या है कि जितनी एनर्जी आपके डार्क फ्रिंज से गई है यानी कम हुई है, उतनी एनर्जी कहाँ पे है, ब्राइट फ्रिंज में है। ठीक है, सो देयर इज नो वायोलेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन लॉ, conservation of energy whenever interference happens. So whatever energy disappears from a dark fringe, an equal energy appears in a bright fringe. हम ये easily कह सकते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ एक क्वेश्चंस भी आया करते हैं जो जनरली आपके I1 I2 और A1 A2 पे बेस्ड होते हैं। तो हम आगे की क्लासेस में उन कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन है जो हम आपके लिए दिए जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। इफ द टू स्लिट्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव width ratio 4:1, deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern. All right, so this is the question. You have to solve it in your notebook. This question you can solve it from your current knowledge, but for solving it we need some shortcut also. तो हम आगे की क्लास में उस शॉर्टकट को भी डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।